So how many are ready to hear the word? आज कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के इस वचन को सुनने के लिए? So let's go into another biblical relationship. और आए हम एक जो पवित्र शास्त्र का एक दूसरा एक रिश्तों में चलते हैं. We are going to read from the book of Ruth. और मैं रूथ की किताब से मैं पढ़ूंगा. Ruth is the 8th book of the Bible. और जो रूथ की जो किताब है 8वीं किताब है पवित्र शास्त्र का. Turn with me to the book of Ruth. और रूथ की किताब को हम पढ़ेंगे. Chapter 1. और पहला किताब Beginning from verse number 8. और हम शुरुआत करेंगे रूथ का पहला अध्याय का उसका 8वां वचन. Somebody listen to this verse. It says, किसने इस वचन को ऐसे कहा? Ruth, do not urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people. Your God, my God. Where you die, I will die. And there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, even if death separates you and me. See, when Naomi realized, यहाँ पे नोमी को इसने इस बात को महसूस किया. Ruth was determined that she was not going. कि रूथ जो है वो उसने अपने मन में ठान ली कि वो छोड़ के नहीं Bible जाएगी. says she stopped urging her. Bible says she stopped pushing her. She said, okay. और उन्होंने फिर कहा कि ठीक है ऐसे ही होने दे फिर. Ruth was saying, I am not going to leave you. और रूथ ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी. I won't leave you. मैं तुम्हें छोड़ के नहीं So to जाऊंगी. understand the story better, और इस कहानी को और अच्छी तरह से जानने it's a के लिए. simple message, but I don't want you to miss this. और ये जो समाचार जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ बहुत ही आसान है. आप इसको खोना नहीं. The background of Ruth is, और जो रूथ का जो पिछला जो जीवन है. so when we understand the background, we can get to the heart of the message. और अगर आप इसके पीछे जो जीवन को समझेंगे तो इसके जो हृदय है इसके बारे में आप समझ The पाएंगे. book of the Ruth opens. और जो बुक जो रूथ का जो किताब ऐसे खुलता At the है. same time, the book of Judges starts. और वही न्याय का भी किताब वहीं पे खुलता है. And we find out very early in the chapter 1. और यहाँ पे लिखा है कि जो पहला जो चैप्टर में है. During which the time the Ruth is written, कि यहाँ पे जो रूथ के बारे में जो लिखा गया there's था. a famine in Judah. It speaks about that. और जूदिया में एक अकाल का समय है. So in the midst of the famine, और वो जो अकाल के उस मध्य में they were introduced to a brother called Elimelech. और एबीमेलेक करके एक भाई से इनका मुलाकात करवाते And the हैं. brother from Judah, his name is Elimelech. और एक जूदा के एक गोत्र से है उसका नाम एबीमेलेक है. And the Bible says, और पवित्र शास्त्र the कहता है. Elimelech is seeking to save his family from the famine. और एबीमेलेक कहते लिखा गया कि एबीमेलेक अपने परिवार को जो प्रकोप से बचाने की कोशिश कर रहा है. Akal, famine, hardship of famine, वो to save the अकाल से family. इस परिवार को बचाने की कोशिश कर Take रहा है. his wife Naomi और वो अपनी पत्नी नयोमी को लेके जाते and हैं. 2 sons, और उनके 2 बेटों को लेके Mahlon जाते and हैं. Chilion. 2 sons named Mahlon and Chilion. और मेहलोम और शिलियोन को लेके जाते हैं. And they moved to a foreign country. और वो एक नए राष्ट्र में जाते हैं. And the foreign country's name is Moab. और जो नया जो देश उसका नाम है मोआब. Don't miss this. Understand the story. आप इसको खोना नहीं, इस कहानी को समझिए आप. Seeking to provide his family. और वो अपने परिवार को सोच के See, this Elimelech takes his family, और एबीमेलेक अपने परिवार को लेके जाते हैं. Naomi and his 2 sons, और नियोमी और उसके 2 बच्चों को. and move to Moab. और वो एक नया देश मोआब में जाते हैं. Sadly, the Bible says Elimelech dies. और इसमें पवित्र शास्त्र में लिखा है कि एबीमेलेक का जो मृत्यु हो जाता है. Around some time after the death of Elimelech, और एबीमेलेक के जो मृत्यु होने के कुछ दिनों के बाद it was told in the Bible, और पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है 2 sons, उनके 2 बेटे the Mahlon and Chilion, they marry Moabite woman. और वो जो है मोआबाइट्स के जो लड़कियां थी उनके साथ वो शादी करते हैं. So one of them marry a sister called Orpha, और एक जो लड़की का जो स्त्री का नाम था ऑर्फा. and the other one they marry a sister called Ruth. और दूसरी जो एक महिला थी उसका नाम था रूथ. Shortly after marriage, और शादी होने के कुछ ही over a period of समय 10 में years, और शायद 10 करीबन साल के अंदर Mahlon and Chilion, both the sons, they died. और दोनों जो पुत्र है उनका भी मृत्यु हो जाता है. Now when you see in Moab, अगर आप देखेंगे मोआब इस देश there are में 3 widows, और यहाँ पे 3 विधवाएं हैं. Naomi, नयोमी है, Orpha, ऑर्फा है and Ruth. और रूथ यहाँ है. The Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है Naomi heard a word in verse 6 says, Naomi get a word that in famine in Judah is over.
और यहाँ पे नयोमी एक वचन बोलती है कि अभी जूदा में जो है वो अकाल खत्म हो गया। She heard that. उसने वो बात को सुना So now she is packing a bag और वो अपने अपने जो जितने भी सामान है उसको बटोरती है to leave Moab और वो मोआब को छोड़ के so जाने that की go back तैयारी to कर रही Judah, है her hometown, because the famine is over. कि तो अपने अपने देश में जा सके जो जूदा है वहां पे जाने के So लिए। while packing a bag, जब अपने सामान को बटोर she रही थी notices उसने एक बात को देखा Orpha and Ruth, they are also packing to go with her. कि ओरफा और उनकी जो बहू है वो रूथ भी अपने अपने सामान को बटोर रही है। This Orpha and Ruth, they know they're obligated और ये जो थी ओरफा और जो रूथ थी वो जानती थी कि वो इसके लिए दायित्व में है as daughters-in-law to stay with the family. क्योंकि एक बहू होने के नाते उनको परिवार के साथ रहना जरूरी है। And Naomi is looking at them और नौमी जो इनके ऊपर देख रही है and she says, और उन्होंने कहा listen, you don't have to do all those things. और नौमी ने कहा कि बहुओं से कहा कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं Do है me a favor. और मुझे मेरे ऊपर एक कृपा Instead of करना coming with me, you go back to your mummy's house. You go back to your own house. और कहा कि मेरे साथ आने से इससे अच्छा है कि आप अपने घर में चले She जाइए said, you stay in Moab only. और कहा कि आप मोआब में ही रहना Find another man in Moab. और वहां पे एक अलग पुरुष को देखना मोआब में You don't need to come with me to Judah all the way. और आपको जूदा आने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। And the Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है Orpha, Naomi and Ruth in verse 9 says, they cry about it. और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ओरफा नौमी और रूत तीनों के तीनों रो पड़े And the Ruth and Orpha, और रूत और ओरफा जो थी they are saying to Naomi, और वो नौमी से कहती no, है in verse 10 says, no, we are going to come with you. और 10वां वचन का लिखता कहता है कि नहीं हम आपके साथ ही चलेंगे We'll come with the Judah with you. और हम भी आपके साथ जूदा में जाएंगे। Now Naomi pushing the matter. और ये नौमी बोलते नहीं होना चाहिए ऐसा। Naomi is telling to her daughter-in-laws, और नौमी अपने बहुओं से कहती है why in the world you will do that? और आप ये क्यों कर रहे हो ऐसा? She is saying, और वो कहती है I can't give you any more husbands. और मैं कुछ पति को नहीं दे सकता। I don't have any more sons. मेरे पास और बच्चे नहीं है, बेटे नहीं है, Girls, I am too old. क्योंकि कहते हैं कि बहू मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी In हूँ। verse 12, she says, I am too old और 12वां वचन में लिखा है कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। even to have a husband, another husband. और इस समय अगर मेरा दूसरा पति भी आ जाते हैं, And if says, if do I have another husband अगर मेरे पास अगर दूसरा पति भी आ and जाता I है, get pregnant tonight, अगर मैं इस रात के बाद में गर्भवती होती and हूँ would you wait for the child और मैं उस बच्चे के लिए अगर मैं रुकी to be रहूंगी old enough to marry you? और उतना बड़ा होने के लिए ताकि तुम मुझसे शादी कर लो। She's telling girls, it doesn't make any sense. और कहा कि बहुएं इसका कोई मतलब नहीं है आप मेरे साथ उठने का। But go back to your mother's house. कहा कि आप अपनी माँ के घर पे चले जाइए Find another man and stay in Moab. और मोआब में किसी एक पुरुष के साथ आप देख के उसके साथ विवाह कर लिए। I'm going back to Judah. मैं जूदा में वापस जा रही The हूँ। Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है Orpha says it is okay. और ओरफा कहते हैं कि वो बहू कहती ठीक है ये ठीक है। She goes back to Moab. और She's happy. वो जो ओरफा थी वो अपने मम्मी के घर पे अपनी माँ के घर पे चली जाती But है। Ruth लेकिन रूथ जो है does something very absolutely different. और लेकिन जो रूथ ने जो किया बहुत ही अलग रीति से किया। She says to Naomi, उसने नौमी से कहा I'm not leaving you. कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली। As a matter of fact, she's saying, और इस वक्त ये जो दौरान listen to this, the way, the depth of the commitment which Ruth is doing. ध्यान से सुनिए कि जो रूथ ने जो कमिटमेंट उसकी गहराई से जो बात की The commitment of love, और जो कमिटमेंट जो प्रेम का what Ruth expresses to Naomi, और जो रूथ ने जो दर्शाया नौमी के लिए is one of the most powerful words we can read in the entire scripture. और आप देखेंगे पूरे पवित्र शास्त्र में एक और बहुत एक मजबूत एक जड़ वाला ऐसा एक पंक्ति है ये। Scripture of love. It speaks in verse 16 and 17. और ये जो पंक्ति दर्शाता है जो प्रेम के बारे में। Ruth is saying, I'm not leaving you. Where you go, I go. Where you stay, I stay. Where you die, I die. Your people will be my people. Your God will be my God. And may God deal harshly with me. Even death separates me from your side. Just hear the depth of the commitment. आप सोचिए कि जब मरण तक वहां पे लिखा कि तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। She is saying, वो कहती है where you go, जहां तुम जाओगे I go. मैं वहां जाऊंगी। Where you sleep, जहां तुम सोओगे I sleep. मैं भी वहीं पे सोऊंगी। Your people will be my people. तुम्हारे जो लोग हो मेरे लोग And होंगे। your God will be my God. तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Now these words of love are so deep.
और ये जो प्रेम का जो ये वक्त ये जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है। Every couple, even the people who are looking forward for marriage, और हर एक जो दंपति जो शादी करने के लिए भी रुके हुए हैं, should remember this covenant. इस बात को इस वाचा को याद रखना। Which says, where you go, I go. कहाँ जहाँ तुम जाओगे मैं वहां Where जाऊंगी, you sleep, I sleep. जहाँ तुम सोओगे मैं वहां पे सोऊंगी। Your people will be my people. आपके जो लोग हैं वो मेरे लोग होंगे। Your God will be my God. आपका जो परमेश्वर मेरा May परमेश्वर होगा। God deal harshly with me. और या तो परमेश्वर मेरे पर प्रकोप If लेके आए, even death separates me from your side. और जब तक जो मृत्यु वो मुझे आपसे अलग नहीं कर लेता। Just hear the depth of Ruth's word about love. आप सोचिए कि रूथ की जो उस प्रेम के बारे में क्या गहराई थी। So, to really, if you want to appreciate what Ruth is speaking, अगर जो रूथ जो बोल रही है, अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, I want to take to like little ancient ways, और मैं ancient past. आपको मैं प्राचीन काल में आपको कुछ क्षण के लिए लेके जाना I want चाहता to हूँ। teach you something about मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। about Israeli marital laws. और जो इजरायली लोगों का जो शादी का जो कानून था, You have to listen to it very carefully. आपको ध्यान से सुनना है मुझे, Then you can understand the depth of what Ruth is saying. तभी आपको रूथ जो बोल रही है उसकी गहराई को समझ Something पाएंगे। you want to know, कुछ एक ऐसी बात आपको which is जानना है called levirate. 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 Levirate is a law. ये लेवरेट का मतलब एक कानून है। There's a key to understand these words of Ruth. और इस चाबी को समझना और इसका जो रूथ को समझने का एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। So, levirate law says, और जो लेवरेट जो कानून ऐसा कहता है, if a man married a woman अगर एक पुरुष एक स्त्री से शादी करता है, and they have no children अगर उसके पास कोई बच्चे नहीं है, and the husband dies, अगर पति मर जाता है, then the husband's brother is obligated to marry his brother's widow. और जो पति का जो भाई है वो जो दायित्व रखता है उसकी पत्नी उनके बड़े भाई के उससे शादी करने के लिए, And he has to give her children, और वो बच्चे दे सकते हैं। and the children she bears और जो बच्चे जो ये स्त्री उत्पन्न करेगी, are not brother's children, और वो उस भाई के बच्चे नहीं they रहेंगे, are the dead husband's children. लेकिन वो जो मृत्यु हो उसको जो पति उसके बच्चे So the होंगे, legacy lives on and his land can be preserved. ताकि जो खानदान जो है और जो लेगेसी उसको मेंटेन करने के लिए। It's about a legacy and land. और ये जो लेगेसी और वो जो स्थान है या जमीन है उसके बारे में है। Make it certain you catch this, you should not miss this. इस बात को पकड़ के रखिए, इसको आप भूलना नहीं या तो मिस मत करना। I'll say it again. मैं वापस बोल रहा हूँ। Levirate law says, और लेवरेज का जो कानून ऐसा कहता है, if I marry a woman अगर मैं किसी स्त्री से शादी करता हूँ and I die before she bear a son, और मेरा मृत्यु हो जाता है मेरे बच्चा का आने से पहले, my brother is obligated to marry her और मेरा जो भाई है उसका दायित्व है कि मेरी पत्नी के साथ शादी करने and to का father children. और एक बच्चे होने का। The children are not his but mine. लेकिन वो जो बच्चा होगा मेरा छोटा भाई का नहीं, लेकिन ये मेरा होगा। So my legacy और जो मेरा जो and लेगेसी my है land is preserved. और मेरा जो जमीन है वो संभाला जाएगा। Understood? Clear? Okay. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Not confused, na? कंफ्यूजन तो नहीं है? So when this sons of Elimelech, Milian and Kilian died, और जो एमीमेलेक के जो बच्चे जो दो थे जब उनका मृत्यु हुआ, just remember this, आप याद रखिए, Orpha and Ruth, ऑर्फा और रूथ, they're obligated to stay connected to the family. और उनका दायित्व था कि वो अपने परिवार के साथ जुड़े रहने का। Why? Because the family was expected to provide another husband. क्योंकि परिवार का एक दायित्व था कि वो ये पत्नी ये जो दो बहुओं को एक और पति देने का। Don't miss this. इसको आप भूले ना। When the sons die, जब पुत्र का जब मृत्यु हुआ the daughter-in-laws, और जब बहू ने कहा, they're obligated to stand with Naomi और उनका दायित्व था कि नवमी के साथ खड़े because रहने that का, is their family. क्योंकि वो उनका परिवार था। But Naomi लेकिन नवमी is कहते हैं, expected to give them another husband. लेकिन नवमी चाहते थे कि दूसरा एक पति इनको दे दें। So the relationship is of obligation and expectation. और ये जो था एक दायित्व था और एक उम्मीद का एक रिलेशनशिप था। ये Obligation दायित्व जो था and expectation. और एक उम्मीद का, I am with you मैं तुम्हारे साथ हूं because I am obligated. क्योंकि मेरा ये दायित्व है तुम्हारे लिए, But I expect you to give me another husband. लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे दूसरे पति दोगे। Yes. Now, if you get this obligation and expectation, when you understand this, अगर आप ये दोनों बातों को समझेंगे कि दायित्व और उम्मीद के बारे you में, will understand आप इस बात को why समझेंगे। Naomi tell Orpha and Ruth, इसीलिए क्यों नवमी ने रूथ और ऑर्फा को क्या कहा, you don't have to come with me. आपको मेरे साथ नहीं आना She है, is releasing them.
और उनको वो स्वतंत्र कर रहे हैं। Naomi is releasing them from the obligation of levirate law. और जो लेवरेट का जो कानून है उसमें से नौमी जो है रूथ और ओर्फा को वो दायित्व मतलब स्वतंत्र कर रहे Yeah. हैं। She is saying to them, और वो उनसे ऐसे कहती है you are no more obliged to stay with me. कि कहा है कि तुमको मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ और रहने का दायित्व नहीं है। Why? क्यों? Because I cannot meet your expectation. क्योंकि मैं तुम्हारा जो जरूरत है मैं उसको मैं पूरा नहीं कर सकती। Because I can't give you another husband. क्योंकि मैं तुम्हें और मेरा एक पति नहीं दे I don't have सकता। male children. मेरे पास बच्चे नहीं हैं। Since I can meet your expectation, जैसे मैं तुम्हारी जरूरतों को मैं देख you सकती no हूँ longer have to live up to the obligation. और लेकिन तुमको उस दायित्व में रहने की कोई जरूरत नहीं है। So Orpha says, और ओर्फा कहती है all right, कि ठीक है I am not obliged to you. और अभी मैं तुम्हारे ऊपर दायित्व में नहीं Because हूँ you cannot meet my expectation. क्योंकि तुम मेरी जो जरूरत है जो मुझे चाहिए आप उसको पूरा नहीं कर That सकते you cannot give me another husband. क्योंकि तुम मुझे एक नया पति नहीं दे सकते I'm just leaving. और मैं इसलिए छोड़कर जा रही हूँ। Oh, she left. और वो छोड़ के चली जाती That's है। what Ruth says. और रूथ देखिए क्या कहती Now है। listen very carefully. ध्यान से सुनिए Where I want to focus today. और हमें यहीं पे ध्यान रखना है। Ruth is saying, रूथ यहाँ पे ऐसे कहती I'm है not leaving you. कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं I'm जाऊंगी। not leaving you. मैं तुम्हें छोड़ के नहीं You know जाऊंगी। why? आपको पता है क्यों? Why? क्यों? She says, वो कैसी because कहती है I am not with you out of obligation. और कहा कि मैं दायित्व के कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं I'm not waiting for an expectation. I'm not waiting for something from you. और मैं तुम्हारे ऊपर कोई उम्मीद से मैं नहीं तुम्हारे ऊपर ठहरी हूं He says, I'm not waiting on an expectation. और मुझे तुम्हारे से कोई उम्मीद नहीं है I'm not with you because of obligation. और मैं कुछ दायित्व है उसके वजह से भी मैं तुम्हारे My साथ नहीं हूं। commitment to you लेकिन मेरा जो कमिटमेंट तुम्हारे लिए है is not of obligation, और ये दायित्व का नहीं है is not of expectation. और ये जो है वो उम्मीद का नहीं है She says, my commitment is love. और मेरा जो कमिटमेंट है वो केवल प्रेम है Love is greater than obligation. और जो प्रेम है दायित्व से महान है। Love expects or love exists when expectation cannot be met. और जो प्रेम जो है वो रहता है जो दायित्व से बहुत महान है और वहां ठहरा गया है। You know आपको पता है what you need in life? आपको पता है आपको जीवन में क्या जरूरत है? You need a Ruth. आपको एक रूथ की जरूरत है। When you need someone आपको एक व्यक्ति चाहिए who's connected to you not out of obligation, और क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ क्योंकि दायित्व की not वजह से out of नहीं expectation, और कोई जो उम्मीद की वजह से नहीं but out of love. लेकिन प्रेम से आपसे जुड़े हुए हैं। He says, I want you because of who you are. मैं तुम्हारे से जुड़ा इसीलिए चाहता हूं कि जो तुम हो इसके वजह से। Young people to pray like this. और यही हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए God deliver me from anybody कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया किसी से भी who is connected with me only out of obligation. और क्योंकि कोई लोग मुझसे इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि कोई दायित्व है उनका। Pray like this. हमें ऐसा प्रार्थना Lord, करना है deliver me from people, Lord, कि लॉर्ड प्रभु मुझे ऐसे लोगों से छुटकारा दे who are with me जो मेरे साथ हैं because they think they have to be with me. They have no other option. और वो उनको ऐसा लगता है कि उनको मेरे साथ ही रहना उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। Young people pray, God deliver you from such people. और आपको प्रार्थना करें प्रभु मुझे ऐसे लोगों से छुटकारा दे Or deliver me such people who says, I'm putting up for you, I'm putting up with you. और कुछ ऐसे हमें प्रार्थना करें कि मैं I'm just staying with you like. और मैं तुम्हारे साथ इसीलिए रह रहा हूं। You have to be careful, beloved. और आपको सावधान रहना मेरे प्रियो। You don't have to be here आपको यहाँ पे होने की जरूरत नहीं है because you have to be here. क्योंकि आपको यहाँ होना जरूरी है। You can be here आप यहाँ पे हो सकते हैं if you choose to be here. लेकिन अगर आप इसका चुनाव करते हैं यहाँ पे होने के लिए। I want people in my life और मुझे वो लोग मेरे जीवन में चाहिए who are connecting to me not out of obligation जो मेरे साथ जुड़े हुए कोई दायित्व के वजह से नहीं but desire to be with me. लेकिन एक इच्छा रखते हैं कि मेरे साथ रहने के लिए Not because they have to क्योंकि उनको जरूरत नहीं क्योंकि वो रहना चाहते हैं उसकी वजह से नहीं but because they want to. क्योंकि वो चाहते हैं मुझसे जुड़े रहने के लिए। Because they want to be. वो चाहते हैं मुझसे जुड़े रहने के लिए। Not because you are the only thing they can get. और ऐसा नहीं है कि क्योंकि केवल आप ही मिलेंगे। No, but I am the only thing they want. लेकिन इसकी वजह से क्योंकि जो उनको जो चाहिए केवल मैं वो ही हूं इसकी वजह से है वो।
Can you go a little more deep? क्या हम थोड़े और गहराई में जाएंगे? Ruth says, रूथ यहाँ पे कहती है, listen, ध्यान से सुनिए, this is not about obligation. और यहाँ पे जो है वो दायित्व के बारे में नहीं It है, is not about expectation. और ये जो है उम्मीद के बारे में नहीं I है, am not with you because I expect you to do something for me. और मैं इसीलिए आपके साथ यहाँ पे नहीं कि मैं ये सोच रही हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करोगे, इसके लिए नहीं हूँ। Sometimes we have to pray this prayer. और हमें कभी कभी ऐसी भी प्रार्थना करना चाहिए Lord, deliver me from such people कि प्रभु मुझे ऐसे लोगों से छुटकारा दे who is connected to me जो मेरे साथ लगे हुए तो because हैं, of what they think I can do for them. वो ये सोचते हैं कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, Because of that they are connected. और इसकी वजह से वो मेरे से जुड़े हुए हैं। Is there anybody here today? क्या यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं What it's like to be people who's connected with you, you think they use you. और ऐसे लोग आपके से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं उनके जीवन में, Because of that what you bring on the table और इसीलिए जो आप मेज पे लेके आते हैं or what you add in their life उनके जीवन में आप कुछ ना कुछ उसको ऐड करते or हैं, what you can do for them. और क्या जो कुछ आप उनके लिए कर सकते हैं, You have to ask God, आपको परमेश्वर से Lord, पूछना I है need somebody in my life कि प्रभु मुझे ऐसे लोग मेरे जीवन में who चाहिए, loves me when I cannot do anything. और मुझे उस वक्त मुझे प्रेम चाहिए जब मैं कुछ नहीं कर सकता। I want those kind of people in my life मुझे ऐसे लोग मेरे जीवन में चाहिए who loves me when I bring nothing in the table. और मुझे तब मुझसे प्रेम करे जब मैं मेज में कुछ नहीं रख सकता, Who loves me when I cannot do anything. और तब मुझे प्रेम करे जब मैं कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए, When I don't have money. मेरे पास जब पैसे नहीं है Who loves me. फिर भी मुझसे प्रेम करते Who हैं, loves me when I am low. और जब मैं नीचे गिरता हूं तभी मुझसे प्रेम करते हैं वो, Because the real love क्योंकि जो एक सच्चा जो प्रेम है rises above obligation. वो हर एक दायित्व से ऊंचा होता है, Real love is steadfast even the expectations are not met. और जो एक सच्चा जो प्रेम है वो दृढ़ है, कभी हिलता नहीं है किसी से भी। Hallelujah. How can Ruth release Naomi? और मैं ये सोच रहा था कि जो रूथ है नओमी को कैसे ऐसे ही छोड़ के जा सकती थी, How can Ruth release Naomi from the expectation? और कैसे इस दायित्व से या तो इस उम्मीद से कैसे वो छोड़ के जा सकती थी, Because that is what Naomi is supposed to give to Ruth. क्योंकि यही तो था कि जो नओमी जो रूथ को देना चाहती थी, How did Ruth let it go? और कैसे रूथ ने कहा कि जाने दो, Here it is. ये यहाँ पे बात होती है। Part of the answer we can find in verse chapter 16. और 16 का अध्याय में उसका उत्तर को हम देख सकते हैं, I just seeing the original Hebrew, verse 16. और इब्रानी को हम लोग जो उसके जो ओरिजिनल उसको पढ़ते हैं, In English translation, translators made it little easy. और जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन जो किया हुआ है वो थोड़ा आसान किया है। The English translation, now listen to me very carefully. ध्यान से आप सुनिए, English translation verse 16 says like this: Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Where you die, I will die. Your people will be my people. Your God will be my God. It's all written in future tense. और जो कुछ यहाँ पे लिखा है वो आने वाले दिनों के बारे में लिखा गया है। Yes or no? Future tense verb it is. I will do. That is verb is I will do. और That लिखा- is future I am going to do that. और लिखा गया कि मैं ऐसा करूंगी, इसका मतलब कि आने वाले दिनों में वो So करेगी। Ruth is speaking in the future. और जो रूथ जो है भविष्य के बारे में कहती है, The verb means doing something. I am going to do. वर्ब का ये मतलब कि मैं करने जा I रहा am हूँ, going to go. मैं वहां पे जाऊंगा, In future where you will go, I will go. और भविष्य में जब तुम जहां जाओगी मैं वहां पे जाऊंगी, Where you are going to sleep in future, I am going to sleep there. भविष्य में जहां पे तुम सोओगी मैं वहां पे सोऊंगी, Where you are going to die, I am going to die. भविष्य में जहां तुम मरोगे मैं भी तुम्हारे साथ वहीं पे मरूंगी। So eventually, your people will become my people because I am going to stay with her, I am going to eat with her, I am going to sleep with her. So your people will become my people. देखा जाए तो आपका जो लोग है मेरे लोग होंगे, क्योंकि मैं उनके साथ खाना खाऊंगी, उनके साथ सोऊंगी, उनके साथ रहूंगी, तो वो लोग मेरे लोग हो And जाएंगे, your God will be my God. और आपका जो परमेश्वर हो मेरा परमेश्वर हो जाएगा। As if Ruth is speaking in the future. और जैसे ये रूथ जो भविष्य के बारे में बात कर रही है, The problem with that is, ये समस्या यहाँ पे ये है, the original in Hebrew verse, और इब्रानियों का जो अगर आप देखेंगे अर्थ में in the verse 16, और 16 वचन में, last two verses doesn't have any verb. Nothing about doing is not there. और यहाँ पे अगर आखिरी के जो दो पंक्ति है वो वर्ब जो करने के बारे में उसके बारे में नहीं कहता। So let me tell you how it reads. और मैं बताना चाहता हूँ ये कैसे इसके बारे में दिखाया So गया है। listen to this very carefully. ध्यान से सुनिए आप, He says, कहते हैं ऐसे, where you go, I will go. जहां तुम जाओगे मैं वहां जाऊंगी, Where you stay, I will stay. जहां तुम रहोगी मैं वहां पे रहूंगी। Then he says without verb. No action is not there. Next verse in Hebrew. और इब्रानियों के उसमें एक विदाउट वर्ब अभी नेक्स्ट उस पंक्ति आ रहा He है says, your people, my people. कि आपके जो लोग वो मेरे लोग होंगे। No verb.
वहां पे कोई वर्ब नहीं है Your God, my God. कि आपका जो परमेश्वर मेरा परमेश्वर In है। our Bible is will be. It's that your people will be my people. The original Hebrew is your people, my people. Your God, my God. और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि तुम्हारा जो परमेश्वर वो भी मेरे परमेश्वर का, ऐसा नहीं लिखा है। तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तुम्हारे लोग मेरा लोग। There is no verb to translate in the future. और यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है कि जो भविष्य के बारे में कुछ कहता Now है। think about that. What does that mean? और आप सोचिए कि इसका मतलब क्या है। अभी Ruth is literally saying, रूथ यहाँ पे ऐसे कहती है, where you go, I am going to go. जहां तुम जाओगी मैं वहां पे So that जाऊंगी। is future. Once she goes, she can go. और ये भविष्य के बारे में बोलते हैं कि जहां जाएंगी मैं भी वहीं पे Where जाऊंगी। are you going to stay? That is future. I am going to stay there. जहां Yes. तुम रहोगी, जहां भविष्य में मैं भी वहीं पे रहूंगी। The future. Where are you going to die? I am going to die there. That's also the future. और भविष्य में लिखा है कि जो तुम जहां मरोगी मैं भी वहीं पे Then the मरूंगी। next two verses, there is no verb. और जो उसके दो बाकी के दो पंक्ति उसमें वर्ब नहीं है। That means she's saying, उसके बाद इसका मतलब ये है, already your people are my people. पहले से ही तुम्हारे लोग मेरे लोग हैं। Watch this. अब सुनिए ध्यान से। And say, already your God is my God. पहले से तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर She's है। telling, वो कहते I हैं don't want to follow you to understand that your people are my people, but I don't want to follow you. After 5 years, I can understand your God is my God. She's telling, already your people are my people, and your God is my God. मुझे तुम्हारे पीछे होके इस बात को समझना जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लोग मेरे लोग हैं, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, लेकिन मुझे अभी से पता है कि तुम्हारे लोग मेरे लोग, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। What is the implication of that? तो यहाँ पे इसका ये मतलब क्या है? She is saying, I'm already put my trust in God already. और यहाँ पे रूथ कहती है मैं पहले से ही मैंने अपने विश्वास उस परमेश्वर में रख दिया है। So what you see in Ruth और यहाँ पे रूथ में जो देखते is a हैं woman is already declared कि ये जो स्त्री ने पहले से बोल दिया that I trust in the Lord. कि मैं प्रभु में विश्वास That करती she हूँ says, और कहती है ऐसे that your Lord is my God. कि तुम्हारा परमेश्वर मेरा She said, I'm परमेश्वर। already started walking with the same God. Naomi, you are walking and serving. मैं पहले से मैं विश्वास करती हूँ और उसी विश्वास में इस परमेश्वर के साथ मैं चलती हूँ। Hallelujah. He says it's already existing. और ये पहले से ही है। Now you have to ask yourself this question. और आपको ये सवाल अपने आप से ये पूछना है, She is a Moabite woman. और ये जो है मोआबाइट की ये स्त्री है ये, How can a Moabite woman can trust the Jewish God? और कैसे ये जो मोआबाइट की जो स्त्री है जो यहूदी परमेश्वर पर कैसे ये विश्वास कर सकती है? She is a Moabite woman. और ये मोआबाइट्स का ये एक स्त्री है ये, How she can trust in a Jewish God? और ये जूइश जो परमेश्वर उसके ऊपर वो कैसे विश्वास कर सकती Because है? if you know anything about Moabites and the Jewish, अगर आपको किसी इसके बारे में अगर पता है ये दोनों गोत्र के Bible बारे says में, they hate each other. इसका ये दर्शाते कि ये एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं। Jews hate Moabites, जो यहूदी जो लोग थे मोआबाइट से घृणा करते and the थे, Moabites hate Jews. और जो मोआबाइट्स थे वो भी घृणा करते थे यहूदियों As से। a matter of the fact, the hate is so deep when you see in Deuteronomy chapter 23. अगर ये आप देखेंगे कि ये जो ईर्ष्यापन इतना ज्यादा था, व्यवस्था विवरण का अगर 23वां अध्याय को पढ़ते The हैं, Israelites are forbidden from having any interaction with the Moabites. और लिखा गया इजरायली जो लोग हैं जो मोआबाइट्स लोगों से के साथ कोई भी संबंध नहीं रखने के लिए Even कहा they गया। cannot enter the land. वो उस जगह पे उस स्थान पे नहीं जा सकते Yet थे। here we can see a Moabite woman, Ruth, लेकिन यहाँ पे दे सकते हैं कि मोआबाइट एक स्त्री जो रूथ है and she said, I already trust in God. कि मैं पहले से ही इस परमेश्वर पर विश्वास रखना Now शुरू the कर question दी। we have to ask is how she can put her trust in the Lord. और ये सवाल अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि कैसे रूथ ने इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास लेके आई। It is really simple. ये बहुत ही आसान है, She seen something in Naomi. क्योंकि रूथ ने नौमी के अंदर कुछ अलग बात को देखा। She seen something in Naomi उसने नौमी के जीवन में कुछ अलग बात को देखा, that makes her not only to stay with Naomi, इसके वजह से वो केवल वो उसके साथ नहीं रुकी, ऐसे ही नहीं और भी किया, it makes her to follow the God of Naomi. लेकिन नौमी की जो परमेश्वर है उसके पीछे भी वो हो गई। She says, वो कहती है, I see God doing things in your life. वो कहती है कि मैं जानती हूं और मैं देख रही हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं, I see God answering prayers. और मैं जानती हूं कि परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर दे रहा I है। see God is keeping the life together. I see God is keeping the life together. और मैं जानती हूं कि परमेश्वर जो है इस जीवनों को सबको एक सिमेट So के Ruth रखा is हुआ है। saying,
रूथ I यहाँ पे ऐसे see कहती God is working in your life. कि परमेश्वर आपके जीवन में चल रहे I हैं see the God you serve in your life और कि परमेश्वर आपके जीवन में चल रहे हैं because I want you and the God you serve I want in my life. क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं मैं भी करूं। Now this is so deep. Why you know? आपको पता है ये इतना गहरा है क्यों? Can you ask this question to yourself? क्या आप ये सवाल अपने आप से पूछ सकते I हैं? was thinking this. मैं ये सोच रहा था Has anyone made a commitment to God because of their connection with you? क्या किसी ने परमेश्वर के साथ कोई कमिटमेंट किया क्योंकि उनका कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ है? No. Has anyone made a commitment to God because of their connection with you? क्या किसी ने परमेश्वर के साथ कमिटमेंट किया है क्योंकि उनका रिश्ता आपके साथ है? Ask yourself this question. अपने आप से ये सवाल पूछिए There it gets so deep. और ये बहुत ही गहरा है। I have to live the life in such a way और मुझे एक ऐसी जिंदगी जीना है that people who are connected with me जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं want to serve the God whom I serve. और उस परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं जिस परमेश्वर की सेवा मैं कर रहा हूं। People who are connected with me, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं they want to know the God whom I know क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि कौन सा परमेश्वर मेरा है and serve the same God whom I serve. और उस परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं कि जिस परमेश्वर की सेवा मैं कर रहा They हूं want to know about the same God और वो उसी परमेश्वर को चाहते हैं देखना that चाहते kept हैं me together when my life is falling apart. They want to know about the same God और who वो चाहते- kept me together when my life is falling apart. और उस परमेश्वर को जानना चाहते हैं जब मेरा जो जिंदगी तितर बितर हुआ था That God who has answered my prayers. और क्योंकि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को उत्तर दिया That God who opened the doors. और वो परमेश्वर जो दरवाजों को खोला That God who made ways. और वो परमेश्वर जिसने मार्ग को I निकाला want them to know the same God. मैं चाहता हूं कि वो लोग उस परमेश्वर को जाने। So Ruth says, रूथ यहाँ पे ऐसे कहती I है want to know your God, Naomi. और कहा है कि रूथ कहती है कि नवमी मैं तुम्हारे परमेश्वर को जानना चाहती हूँ Because of that I trust in you and your God. और इसीलिए इसी वजह से मैं तुझ पर और तुम्हारी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करती हूँ। Hallelujah. Hallelujah. So see how it comes out. और देखिए कितना बेहतर रूप से ये बाहर आता The है reason Ruth can release Naomi और ये जो कारण था कि जो रूथ जो नवमी को जो रिलीज कर सकती थी from the expectation of giving a husband और एक उम्मीद से कि वो एक पति को दे सकती थी is because she trusts God. क्योंकि वो परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करती थी। She trusts God. वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी। Now listen to this. ध्यान से सुनिए, Listen to this. ध्यान से सुनिए। This is what the trust in God can do. और ये जो विश्वास परमेश्वर में कार्य कर सकता है। Hold on to this. This is very deep. आप इसको पकड़ के रखिए, बहुत ही गहरा है ये। When you start trusting in God, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू when you करते हैं, start trusting in God, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करते हैं allow you to release people और आपको अलाउ करते हैं उन लोगों को छोड़ने के लिए or to have people like God in your life. और या तो ऐसे लोगों को प्रभु परमेश्वर लेके आएंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा। No, you keep people as God in your life. आप लोगों को ऐसा रखते हैं परमेश्वर जैसे आप उनके जीवन When you में। start trusting God in your life, जब आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं आपके जीवन you में release those people whom you're trusting that they are God in your life. Okay. I'll tell again. When you start trusting in God, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं you will allow आप अलाउ करते हैं to release people कि आप लोगों को रिलीज करने के लिए whom you think they are God in your life. कि उनका जो परमेश्वर उनके जीवन में है। करेक्ट? No, I'll make it a little more simple. You think, you expect the help from someone. आप सोचते हैं कि मैं कहीं से मदद ले लूं And you think because of that person, only my life goes on. और आप सोचते हैं कि उसी व्यक्ति की वजह से मेरा जिंदगी Every आसान हो moment of जाएगा my life, I need that person. और हर एक समय में मुझे उस व्यक्ति का जरूरत है। So the moment you turn your trust to God, और जब भी उस वक्त जब आप अपना विश्वास परमेश्वर पे लेके आते हैं you are allowed to releasing that person's responsibility of God from your life. और तभी आप अलाउ करते हैं उस चीज को रिलीज करने के लिए उस जीवन से परमेश्वर के ऊपर। राइट? इफ आई एम रॉन्ग? नहीं। अगर आपके जीवन में एक आदमी आप परमेश्वर को जैसे समझते हैं, सब दे सकते हैं, सब कर सकते हैं, द मोमेंट आपका भरोसा परमेश्वर को ऊपर है, आप वो आदमी को परमेश्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके जीवन से आप रिलीज कर पाएंगे, आजाद कर पाएंगे। आजाद कर लेंगे। ओके,
So one of the greatest thing और एक महान का एक बात है ये, you need in any relationship और एक रिश्तों में सबसे जरूरी बात है is the clarity between what you expect them to do for you और एक क्लैरिटी होना चाहिए कि वो आप जो समझते हो आप उनके आप वो जो आपके जीवन में करें, what you think only they can do, आप सोचते कि केवल वो ही कर but सकते you हैं, understand God is above everything, He can do much better than that. लेकिन आपको इस बात को समझना कि परमेश्वर महान है, वो ही सब कुछ कर सकता है। You know what messes up the relationship? आपको पता है कि इस रिश्ते का एक मैसेज क्या है? We look at people हम लोगों की ओर देखते हैं, and we expect them to do हम ये चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें, what you should be trusting in God to do in your life. लेकिन परमेश्वर से ज्यादा आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं। I say it again. मैं वापस बोलता हूँ, You look at people आप लोगों की ओर देखते हैं, and you expect them to do वो आप चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ करें, what you ought to be doing by trusting in the Lord. लेकिन जो परमेश्वर के विश्वास करने से ज्यादा आप इनके ऊपर भरोसा करते हैं। We can say, I know I don't need you हम कहते हैं कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, to give me joy in my life मेरे जीवन में एक उमंग है, एक खुशी देने के लिए, because I trust God to do that. क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के ऊपर उसके लिए। I don't need you to make me feel good. मुझे आपकी जरूरत नहीं है कि मुझे खुशी महसूस I करने के trust लिए, God to do that. लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मुझे खुशी I देता है। do not need you to make me feel better. और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं कि मुझे अच्छा महसूस करने I के लिए, trust God to do that. लेकिन मैं परमेश्वर विश्वास करता हूं कि वो मुझे महसूस I don't करेगा need अच्छा। you to make me feel like I can make it. No, I trust God to do that. मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं कि ये बताने के लिए कि ये मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर पे पूरी तरह से निर्भर हूं, उसके ऊपर विश्वास करता हूं। Stop putting godly pressure on people. लेकिन परमेश्वर का जो Pressure like pressure है God on people. लोगों के ऊपर डालना बंद कर दो। I'm not your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं। Stop putting godly pressure on your spouse. और परमेश्वर का जो गॉडली जो प्रेशर अपने पति या पत्नी के ऊपर मत डालो। He or she is not your God. वो पत्नी या पति आपका परमेश्वर नहीं है। And your relationship will be better एक रिश्ता तभी एक बेहतर होगा when you learn to trust God लेकिन तब आप जब सीखेंगे परमेश्वर को विश्वास करना, and you understand what God can do in your life. जब आप इस बात को समझे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकता है। So what Ruth is saying, रूथ यहाँ पे क्या कहती है? listen, सुनिए। I'm not expecting you to give me a husband. और I'm not expecting you to give me a husband. और मैं ये नहीं समझ रही कि तुम मुझे एक पति दोगे। I'm not expecting you to give me my children. और मैं ये नहीं समझ रही कि तुम मुझे मेरे बच्चे दोगे। I'm releasing you from the responsibility. लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी से मैं तुम्हें रिलीज I करती trust हूँ। in God. मैं परमेश्वर भरोसा He is करती going to हूँ। give me the husband और and वो He is मुझे going to give me the child. वो मुझे पति देंगे, वो मुझे बच्चे देंगे, मेरे परमेश्वर। And we know Ruth's life. और हम जानते हैं रूथ की When जीवन she में, released Naomi from the expectation, और जो रूथ ने था, जो एक्सपेक्टेशन था and नाओमी से, उसको रिलीज she किया, obliged to stay with her. Still she stayed with her because of commitment of love. क्योंकि वो उसका दायित्व था कि रूथ नाओमी के साथ रहने के लिए, इसीलिए उसने पूरा किया And इस she बात को। trusted God than Naomi. और रूथ ने परमेश्वर भरोसा ज्यादा किया और नाओमी में And कम। later the life of Ruth, we can see how God gave her a husband and she became the lineage of Jesus, mother of Jesus Christ. अब फिर देखेंगे परमेश्वर ने रूथ के जीवन को कितना आशीष दिया। फिर देखेंगे यीशु मसीह का जो वंश है वो यहीं से शुरू हुआ। If today you are sitting here, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, do not expect एक्सपेक्ट ना करना, expect from God. केवल परमेश्वर पे भरोसा Because we रखना, trust in God. केवल भरोसा रखना परमेश्वर पर। So Ruth expresses his love. और यहाँ पे रूथ जो अपने प्रेम को दर्शा रही है, And Bible says in verse 18, और 18 वचन में लिखा है, when she heard about what Ruth is saying, और जब नाओमी ने सुना कि रूथ क्या कह रही है, she stopped Ruth from living. He says और फिर she stopped urging Ruth to leave. और फिर नाओमी ने रूथ को कहा ठहर जा। She left speaking unto her, he says. जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात ना But in कही। Hebrew Bible it says, इब्रानी शब्द में ऐसे लिखा है, the moment Naomi heard Ruth's love, और जैसे ही जब नाओमी ने रूथ का इस प्रेम को समझा या he सुना, says Naomi stopped talking with Ruth. और तभी उसी क्षण नाओमी ने रूथ से बात करना बंद कर दिया। Naomi says nothing else to say. और नाओमी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं कहना। She heard Ruth's love and she was speechless. और जब नाओमी ने देखा कि रूथ का जो प्रेम इसके ऊपर कितना था, वो एकदम उसके पास कुछ बात करने के लिए Yeah, why शब्द ही Naomi नहीं was था। speechless?
नओमी क्यों ऐसा बात हो गई कि उसके पास कोई शब्द नहीं है बोलने के Because लिए? for Naomi, क्योंकि नओमी के लिए, Ruth's love does not make any sense. क्योंकि जो नओमी का जो रूथ का जो प्रेम था नओमी के लिए, उसका कोई सेंस नहीं रखता था इसके वजह Ruth's से। love make no sense for her. और क्योंकि जो रूथ का जो प्रेम है उसके लिए कोई सेंस ही नहीं रखता Naomi था। was thinking, नओमी ये सोच रही थी, how you can love me when I cannot do anything for you? तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते थी जब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती? Naomi cannot do anything for her. नओमी कुछ भी नहीं कर सकती रूथ Cannot के लिए। provide a husband, cannot provide her anything. Still Ruth says, I love you, I'll follow you, I'll be with you. So Naomi is speechless. Even though I cannot give her anything, still she loves me. नओमी कहती है कि मैं तुम्हें पति नहीं दे सकती, ना बच्चे दे सकती, फिर भी नओमी मेरे साथ रुकी है। मेरे पास कुछ शब्द नहीं, नओमी बोलते हैं रूथ के लिए, मेरे पास कुछ नहीं बोलने के लिए। Naomi is saying, why do you love me? और हम लोग कहते हैं कि तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? When I'm at the end of my journey and I cannot do anything for you. और मैं मेरे यात्रा के उस अंतिम पड़ाव में हूं जहां मैं कुछ नहीं कर सकती। Naomi is speechless. She was thinking, how you can stay with me when I cannot give you anything? नओमी के पास कोई शब्द नहीं बोलने के लिए, बोलती कि जब मैं नहीं दे सकती फिर तुम मेरे साथ क्यों रुकी हुई हो? Why do you walk with me when I cannot provide you anything? तुम मेरे साथ क्यों चल रही जब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती? How we can love me in such a way? What you're speaking is illogical. That was Naomi's thinking. तुम मुझसे कैसे प्रेम कर सकते हो, क्योंकि तुम जिस तरह से सोच रही है इसका कोई सेंस नहीं है और ये हो नहीं सकता। Your love make no sense. आपका जो प्रेम है उसका कोई अर्थ भी नहीं होगा कभी कभी। Beloved, that's the point of the old story. मेरे प्रियो, इस पूरा कहानी का मैं आपको बताना चाहता हूं महत्व, The real story, the real point. जो एकदम जो महत्वपूर्ण जो एक पॉइंट है, The real love make no sense. जो एक सच्चा जो प्रेम है उसका कोई कारण नहीं होता। When you really experience true love, जब आप एक सच्चा प्रेम को आप अनुभव करते हैं, it'll blow your mind because it doesn't make any sense. क्योंकि आपके मनों को वो उड़ा देगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि इसका कोई समझ ही नहीं आ रहा मुझे, Doesn't make any sense. इसका कोई मतलब नहीं होता आपको उसके लिए। God can see me with all my faults and failures. मेरे परमेश्वर मेरे हर एक ऊंचाई और मेरे गिरने में फिर भी वो मुझे He देखता saw है। all my mistakes. उसने मेरे हर एक जो गलतियों को मेरे परमेश्वर Still ने he loved देखा, me more than his life. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। Beloved, it make no sense. हो सकता है मेरे प्रियो इसका कोई मतलब नहीं होगा। Even though I put God many times in my life, हो सकता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कई बार होंगे। I let God down many times in my life. हो सकता है कि मैंने परमेश्वर को कई बार नीचे गिराया मेरे Every जिंदगी day I में। put down in my life. हर दिन मैं रखता हूँ ऐसा। Yet He meets me every day in the brand new way. लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ मुलाकात करता है हर एक प्रतिदिन, Every morning. हर एक सुबह। It make no sense, beloved, और मेरे लिए कुछ मतलब नहीं समझता that इसका। God could see me how wretched I am, और आप वो जानते हैं कि मैं कितना टूटा हुआ व्यक्ति हूँ, and still He can love me anyway. लेकिन फिर भी वो मुझसे प्रेम करता है कैसे भी। It make no sense, beloved, शायद मुझे कुछ समझ में नहीं आता होगा, that I can ask God लेकिन मैं परमेश्वर से पूछ सकता for हूँ that what I don't deserve, जो मैं नहीं ले सकता, मैं उसके लिए नहीं लायक नहीं but हूँ, God can give to me anyway. लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर मुझे दे सकता है। It make no sense, beloved. मुझे कुछ समझ में नहीं आता इसके बारे में, It make no sense शायद मुझे इसके बारे में नहीं समझ में आता। that God would know how worthless we are. परमेश्वर जानते, मैं जानता हूँ और परमेश्वर के लिए मैं कितना मूल्यवान हूँ, मैं भी परमेश्वर जानता है। And how worthless, not मूल्यवान, how worthless we are. और हम जानते हैं कि हम लोग उसके लायक भी नहीं है परमेश्वर के सामने, How worthless we are. हम कितने उसके लायक भी नहीं Yet है। God sent His Son to die for you and me. लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया आपके लिए और मेरे लिए मरने के लिए। It make no sense, beloved, इसका मुझे कुछ समझ में नहीं है, मतलब नहीं समझ में आता। that a Savior who can call down legions of angels, और लेकिन जो एक ऐसा जो उद्धार करता जिसने मुझे बचाया है, who can call down angels, और जो स्वर्गदूत को वो नीचे बुला सकता है, who allow Himself to die so that you and me can live forever. वो अपने आप को मार दिया ताकि आप और मैं जी सके। It make no sense, beloved, मुझे कुछ समझ में नहीं आता इस बात के लिए। that God loves us in spite of that we sin. और परमेश्वर मुझसे फिर भी प्रेम करता है हालांकि मैं पापी हूँ। And the Bible says, पवित्र शास्त्र कहता when है, Naomi heard that kind of love, और नओमी ने इस तरह का प्रेम को सुना Naomi was speechless. और नओमी के पास कोई शब्द नहीं था। When you think about God जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते and हैं what He did and doing in our life, और जो परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है, that has to blow our mind. आए हमारे मनों को इस बात को हमारे मनों को वो उड़ा दे That इस बात को सोच should, that के, should bring us into the presence of God. और ताकि वो हमारे प्रभु की उस उपस्थिति में हमें No लेके need to आए। force you to come in the presence of God. और कोई भी आपको ऐसा न बोले, फोर्स करे कि आप प्रभु की No उपस्थिति में need आए। to someone to tell you to give sacrifice your time and money and the things for the Lord. कोई आपको ये न समझाए कि आपका समय, आपका जो पैसे का बलिदान आपको करना Because है, you cannot outgive God. क्योंकि आप जानते हैं कि वो परमेश्वर कौन है। When you understand His love, जब आप उसके प्रेम को समझोगे,
You know, when we understand His love, जब आप इसके प्रेम को समझोगे, every now and then when I think about His love, जब और कभी भी मैं जब प्रभु के इस प्रेम को समझता हूँ how much God has loved me, कि परमेश्वर ने मुझसे कितना प्रेम किया, how many chances He has given to me, और कितने बार मुझे मौका दिया how परमेश्वर many ने, things God has kept under the table, और कितनी बातों को परमेश्वर ने मुझसे छुपा के रखा, how many things God has set aside the table, और कितनी बार परमेश्वर ने कुछ चीजों को मेरी जिंदगी को how many दूर things रखा, in your life God didn't allow to come into the public. और कितनी बार परमेश्वर ने मेरे जीवन को पब्लिक में आने से संभाल के रखा। When you think about that kind of love, आप सोचिए उस प्रेम को। I cannot go speechless. मैं शब्दबिन हो जाता हूँ, No, I cannot go speechless. मैं शब्दबिन नहीं हो सकता परमेश्वर के लिए। I have to open my mouth मैं अपने मुख को खोलूंगा and tell the Lord, और कहूंगा परमेश्वर से, thank you Lord for loving me. धन्यवाद प्रभु मुझसे प्रेम करने के लिए। Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु। Let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं।